we were dealing with salary structure, right? In the previous class, in the first class, when I was dealing with salary structure, I told you that broadly salary can be categorized into 4 parts. Wherever you go, wherever you work, whichever salary slip you see, there are 4 components that are mandatory in the slip. But having said this, I also told you that designing compensation is something which is very specific to organizations, because the organizations do it according to their financial capacity. For example, those organizations who have huge financial capacity, they are known to be giving more of benefit things. They are known to be giving more attractive packages, right? And those organizations which do not have that much expansion to financial capacity, since they cannot spend so much of money, so they try to attract and retain employees in different terms. For example, I'll tell you, see, the MNCs, today is the world of MNCs, globalization. There are Indian companies also which are operating in America, South Africa, right? But still Indian companies, they offer less than what Americans and European countries can offer. Why? Because they are developed economies. They have more money. How do you think Indian companies retain employees? What is the method? कहने का मतलब कि इंडियन कंपनीज बाहर ऑपरेट कर रही है, अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, नीदरलैंड्स में भी है, बट यूरोपियन कंपनीज के पास ज्यादा पैसा होता है. So if they can offer more salary, what is the reason why the employees or even you people, why do you rush to America? Why do you want to work in IT? Why do you want on site? Because you get more money. So in case if there is only comparison of money, what do you think is the factor that retains employees in Indian companies? Can you tell me? सोच के बता. अगर इंडियन कंपनीज के पास उतना पैसा नहीं है जितना बाहर की कंपनीज दे सकती हैं, क्या कारण होगा? क्योंकि रिटेन कंपनीज तो यहाँ भी चल रही हैं, प्रॉपर बिजनेस चल रहा है, उसको रिटेन यहाँ भी करना है. क्या रीजन है? वैल्यू ऑफ मनी एज इन like 1 rupee and $1. नहीं, not that. Saving तो पता है, यहाँ पे saving पता है. नहीं, मेरे कहने का मतलब है तो अलाउंस में तो फिर पैसा लगेगा ना, एक लिमिट तक ही दिया जा सकता है. क्या कारण है? देखो, इसीलिए बोलते ये सब इंटरव्यू में बीबीएम को भी पूछा गया अभी 3rd ईयर में. तुम लोग को इसलिए वर्कशॉप के समय में ध्यान देने बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिलेबस नहीं है, तो इधर उधर भी बहुत कुछ हम बता सकते हैं तुमको. कारण देखो, पटना में भी छोटी कंपनीज है कि नहीं? मौर्य लोक और डाकबंगला वाला एरिया में छोटी छोटी कंपनी से 50-60 का एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ होगा वहां पर भी. एंड देयर इज अ रीजन, पटना में भी एम्प्लॉयज तो काम कर रहे हैं ना. एंड ऑफ कोर्स अगर तुम दिल्ली मुंबई नहीं जाते हो तो तुम पटना में काम करते हो. तो यहाँ पे भी काम करने के लिए सिर्फ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं होती है. देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Always remember, good industrial relation is one thing that these organizations have to offer. A major reason for employee turnover is bad management, poor management policy, bad relationship between employees and employer, autocratic leadership, no flexibility at all. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात करता है. ठीक है, तुम लोग कॉलेज ही आते हो तो तुम लोग को लगता है कि क्लास में एसी नहीं चल रहा है तो हमको कंप्लेन करना चाहिए क्योंकि आई डिजर्व टू बी सिटिंग इन अ गुड एनवायरनमेंट, राइट? इमेजिन योरसेल्फ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ से निकलोगे, नौकरी करोगे, 9 बजे से 6 बजे तक वहां रहोगे, पूरा दिन, whole day you are in the organization. Imagine the kind of expectations you have for your organizations, and imagine how much, not just physically but emotionally, you are investing in the organization. If that organization doesn't treat you well, if that organization doesn't feel you respected, doesn't feel you valued, you are not going to stay in that organization for too long. Employees of Tata, they'll never bitch about Tata. In general, if you see,
मच अबाउट टाटा बिकॉज रतन टाटा की फिलॉसफी ही यही है। टॉप, आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस चीज पे कि उसके जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी फिलॉसफी कैसी, ठीक है। उसका अजम्पशंस, थर्ड ईयर में आओगे तो तुम लोग को ओबी में एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। उसमें पढ़ोगे कि वर्क कल्चर कैसे कैसे बनता है। सबसे पहला लेवल ऑफ कल्चर क्या होता है? सबसे पहला लेवल ऑफ कल्चर होता है बिहेवियर, दूसरा लेवल होता है assumption और तीसरा होता है बिलीफ। ये तीनों चीजें मतलब obviously and not so obviously they affect the work culture. For example behavior देखो, तुम किसी हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक, तुमको कोई काम है, मान लो पापा का कोई reimbursement है, so you went to hospital for getting your money reimbursed. Now पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिसेप्शन होता है। उस रिसेप्शन पे अगर तुमसे अच्छी तरीके से व्यवहार किया गया तो तुमको अच्छा फील होगा। उस रिसेप्शन पे अगर तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया, आप जाके उधर बैठिए सर, अभी अभी ये सब काम नहीं होगा सर, आप उधर जाके बैठिए, अभी वेट करना पड़ेगा, तुम्हारा मन थोड़ा सा फटा होता है। तुम इमेज बनाते हो कि नहीं उस हॉस्पिटल के बारे में, सिर्फ उस लड़की को या उस लड़के को देख के बनाते हो ना। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर जो कि सामने से दिखता है। तुमको वेट कराया जा रहा है, they'll offer you tea, they'll offer you a glass of water, ये छोटी छोटी चीजें वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे ये तुम्हारे भी घर के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, राइट। डिलीवरी बॉय आता है थका हारा परेशान, अभी इतनी गर्मी में बहुत सारे घर में ऐसा होता है, भैया पानी चाहिए आपको, आप पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, होता है ना, ऑफर करते होगे। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर होता है। अगर, और ये बिहेवियर जो चीज होती है, दिस इज वेरी वेरी अपैरेंट। तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाते हो, तुम अभी ऑफिसर बने नहीं हो, तुम अभी एग्जीक्यूटिव बने नहीं हो, यू हैव नॉट येट बीन हायर्ड, बट द एक्सपीरियंस यू टुक फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड इज समथिंग दैट is also the impact of their behavior for you, होता है ना। दूसरा वर्क कल्चर क्या होता है? अच्छा बिहेवियर तो ऊपर से दिखता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उससे कम दिखती हैं पर वो वर्क एथिक्स को या ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। अजम्पशन, हम बीवीएम सेकेंड ईयर के बारे में क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये तो तुम लोगों को अगर हम ना बताएं, जो कि जनरली वर्क प्लेस पे आदमी नहीं बताता है। सपोज करो हम ये अज्यूम कर लें एज अ टीचर, अजम्पशन मतलब मैंने ये माना है, ये मेरा मानना है, हम ये अज्यूम कर लें कि बीबीएम सेकेंड ईयर डजंट वांट टू स्टडी, तो मेरा जो बिहेवियर होगा तुम्हारी तरफ वो वैसा ही होने लगेगा, मेरा अजम्पशन मेरा बिहेवियर गाइड करने लगेगा, राइट। फिर हमको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ पूछ रहा है, तुम समझो इस बात को, तुम अगर अज्यूम कर लेते हो किसी के बारे में कोई चीज, उसके बाद तुमको हर वो चीज अपने असम्पशन के हिसाब से दिखाई देने लग जाती है, लगती है, नहीं भी होगी तो भी दिखेगी। On the contrary, if I assume that no, some students are notorious in class, rest of the class wants to study, it's a good batch, then what happens is that my behavior will be directed accordingly. I'll probably work on that notorious bunch in order to keep the class silent. Okay. थर्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स का आता है जिसको कहते हैं बिलीफ। बिलीफ का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप फिलॉसफी इस बात को मानती है, सिर्फ सोचती नहीं है, अज्यूम नहीं करती है, मानती है। जैसे टाटा का बिलीफ है ये कि मैंने, टाटा का रिक्रूटमेंट बहुत तगड़ा है, ये याद रखना, रिक्रूटमेंट सेल बहुत तगड़ा है उसका, थ्रू आउट टाटा इज नोन फॉर इट्स रिक्रूटमेंट, तो बहुत रिगरसली रिक्रूट करती है, और इसीलिए उसको मानना है कि हायर द बेस्ट पीपल एंड सेट देम फ्री। मतलब आप बेस्ट लोगों को उठाइए, ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास से अगर हम बेस्ट स्टूडेंट को उठाएं, बेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको 80% मार्क्स आया, बेस्ट का मतलब ऑल राउंड,
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम क्राइसिस सिचुएशन आएगा तो आगे से वो स्टूडेंट आ करके हैंडल करेगा, क्योंकि ये तो आता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। हम अगर उस 5 बेस्ट को उठा लें इस क्लास से तो हमको बहुत ज्यादा उसको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम ये देख के उठाएंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल है, हम ये देख के उठाएंगे कि वो आगे से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई क्राइसिस सिचुएशन आता है तो वो खुद फॉरवर्ड आता है। इससे मार्क्स का कुछ लेना देना नहीं है। तभी आप देखेंगे कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमको कितना मार्क्स आए, और इनफैक्ट इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने साल काम किए कहाँ। वो तुम्हारा उसका अपना रिक्रूटमेंट का एल्गोरिदम है, वो तुमको रिक्रूट करेगा तभी जब उसको तुम प्रूव कर दोगे कि तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम कुछ वैल्यू ऐड करोगे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, दैट्स इट। तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं। गॉट इट? ये बिलीफ होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये बिलीव करे, मान ले इस बात को, टॉप मैनेजमेंट का ये बिलीफ है कि मेरे एम्प्लॉइज को अगर स्ट्रिक्टली सुपरवाइज नहीं किया जाए तो वो काम नहीं करेंगे। सीधी सी बात, हम अगर उनको लिबर्टी दे देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, then their behavior will be directed towards substantiating this belief. This is how the organization culture is formed. And organization culture, आपके भी घर का कल्चर होगा, ट्रांसफर हुआ है, तुम वही कर रहे हो जो तुम अपने मम्मी पापा को करते हुए देखे हो, राइट? आप ये सुने होंगे जब लड़की शादी होकर के आती है तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे घर का ये कल्चर है, अब इससे यू जस्ट कैरी इट फॉरवर्ड। ट्रांसफर हुआ, जनरेशन 1 जनरेशन, उसके बच्चे वही करेंगे। आपको ये कॉमन चीज, आप किसी के फैमिली को भी उठा लेंगे तो आपको ये कल्चर दिखेगा। किसी के घर का एक कल्चर है, कोई स्पेसिफिक पूजा है जो उसके घर में होती है, सबको करनी है, राइट? और कहीं कहीं तुमको ये भी दिखेगा कि पूरा फैमिली फ्रॉड टाइप का, वो नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है? So why does this happen? Because culture is transferable. Culture का characteristic feature ही होता है कि it is the set of values and beliefs that can be transferred from one generation to other, and this happens at the workplace also. तभी इतने 50 साल पुरानी टाटा कंपनी है और आज भी उसका कल्चर एक ही जैसा है, ठीक है? ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत सारी कंपनीज हैं, आई विल नॉट टेक नेम्स, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज जो शायद इंडिया लेवल पे नहीं, एशिया लेवल पे काम कर रही है, दे हैव रूथलेस कल्चर, रूथलेस कल्चर। ओके, कहने का मतलब, नाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम आवर डिस्कशन, आई वाज सेइंग दैट the organizations, the Indian organizations, they have industrial relations to offer, okay, good industrial relation. So I was telling you that, see, you are in college for a shorter time, still there is an expectation that you get attached to this organization, to the institution. Imagine yourself working 9 to 6 in an organization, how much you are emotionally invested in that organization, right? So Indians are known to offer good industrial relations with good amount of flexibility. Flexibility is one thing जो जब तुम नौकरी करने जाओगे तो तुमको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, flexibility. There are some organizations that don't allow you to go outside their premises even in the lunch time. And there are organizations that will say that, okay, my lunch time is from 1 p.m. to 2 p.m. I am not concerned where you are in this 1 hour, but you be back at 2. तो तुम्हारा बहुत सारा काम है, घर जाके आ जाओगे, बैंक का कोई काम है कर लोगे, किसी से मिलना है तुम कर लोगे। तो थोड़ा सा जब तुम अपना भी पर्सनल लाइफ, सूरज, जब तुम अपना भी पर्सनल लाइफ मेंटेन कर पाते हो, then you like to work in that organization. There are many women employees जिनको ज्यादा पैसे का ऑफर है, फिर भी वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करती है। पता है क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, गुड वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। और ये बहुत कॉस्टली नहीं है, ये तो तुम्हारे मैनेजमेंट की पॉलिसी है। ये कॉस्टली है, 1 घंटा किसी को बाहर जाना अलाउ करना कॉस्टली है, लेकिन ये एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी को अच्छी मैनेजमेंट की पॉलिसी बोली जाती है। एंड इंडियन कंपनीज आर competing with MNCs
on their flexibility part, on their good industrial relations part. Okay. Now, in today's class, so three aspects of salary we saw. First was basic salary, second was allowances, third was benefit and incentive. Incentive थोड़ा सा बता देते हैं. Incentive तुम लोग जानते होगे. Incentive is what it is. It is when you achieve some target, when you do extra. Okay. This incentive is extra. Extra से आदित्य विजन गए हो? गए हो? जब आदित्य विजन जाते हो तो तुमको नहीं लगता है कि जैसे तुम घुसे बस तुम्हारा वेट हो रहा था? एंड हर कंपनी का अपना रिप्रेजेंटेटिव है. और तुम ये नोटिस किए होगे, हर कंपनी का अपना रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो ठीक है. जब वो तुमको सामान पूरा परसिवेट करके, सेल्समैनशिप का पूरा टैलेंट यूज करके बेच देता है, उसके बाद वो ही तुमको लेके जाएगा रिसेप्शन पे बिलिंग कराने. ये देखे हो? क्यों? क्योंकि वहां पे नाम नहीं, वहां पर हाँ, उसके बाद वो आदमी जाके वहां पे कौन किसने सेल किया उसका नाम होता है, और उसका नंबर ऑफ सेल्स काउंट होकर के उसको इंसेंटिव मिलता है उससे. ठीक है. हाँ, उसमें भी होता है. अब सब जगह कर दिया सर, क्योंकि सेल्स वाला हर कुछ में तो मार्केटिंग आ ही गया. अब तो बैंक वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं ना, फिर उनका तो टारगेट सबसे खतरनाक है. हाँ? पता नहीं, मैं भी. ठीक है. एक न्यूज आई वाज सीइंग वन न्यूज, उसमें ये था IRCTC भी अब चार्ज करेगा एक्स्ट्रा बैगेज के लिए. ट्रेन पहले ऐसे फ्री था ना, आप जितना भी सामान ले जाइए. तो एक आर्टिकल हम देख रहे थे, IRCTC चार्ज करेगा एक्स्ट्रा बैगेज के लिए जितना. So anything is possible. Okay. Incentive इसीलिए बनाया. देखो सुनो इधर, इंसेंटिव के फेवर में और इंसेंटिव के अगेंस्ट में भी स्कॉलर्स की अपनी अपनी राय है. जो लोग इंसेंटिव के फेवर, क्या बात हो रही है पीछे? इंसेंटिव के फेवर में जो लोग बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, इंसान अपनी एफिशिएंसी और पुश करेगा कि उसको ज्यादा पैसा मिलेगा. लेकिन इंसेंटिव के अगेंस्ट में भी बोलने वाले मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैं. वो ये कहते हैं, हाँ? इसके अलावा तो नहीं पूरा हो पाता है तो पैसा नहीं मिलेगा. लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या होगा बताओ? हम तुमको अगर बोले कि हम 50 पन्ना लिखोगे असाइनमेंट का, हम तभी तुमको अच्छा मार्क्स देंगे, 20 नंबर मिलेगा. बताओ क्या होगा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट? और कुछ नहीं. बच्चे करके भी नहीं करके लाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. दैट इज सिंपल. अच्छा नहीं कर पाएंगे. तुम लोग को ये नहीं लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे कि ये असाइनमेंट, अगर हम ये बोले कि अच्छा असाइनमेंट बना के दो, तो शायद मन से उसमें क्वालिटी डालो. 50 पन्ना डाल देंगे तो जैसे तैसे बना के दे दोगे कि नहीं 50 पन्ना पूरा होने के लिए. ह्यूमन नेचर है. ठीक है. पेज नंबर 1, 2 जब उसी पे मार्किंग है तो वैसे ही बनाओगे. फैक्ट है. तुम्हारे जैसे आदमी के लिए इंसेंटिव का नेगेटिव साइड है. तुम ही एम्प्लॉय बनोगे कल, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा. कई बार ऐसा, अब तुम वर्कर को बोलोगे कि तुम इतना यूनिट एक दिन में प्रोड्यूस करोगे, तो इतना यूनिट पैकेजिंग करोगे तो तुम्हारा इंसेंटिव होगा. तो कई बार वो ऐसा होगा कि क्वालिटी डिग्रेड कर देगा, करेगा ना. ये एक थोड़ा सा मैनेजमेंट स्कॉलर्स इस बात पे आर्गुमेंट करते हैं. ओके. चलो, in the next class we'll deal with rewards and recognition. Okay. The first part is basic, allowance, benefits and incentive. कर दो उसमें. And fourth is reward and recognition. ये थोड़ा डिटेल में बताना है, इसीलिए I'm just buying some time.
Give me a page. Page.